Where is this? I have to make myself. Okay, so we'll just start. Akshay sir, will you please start your camera? I'm spotlighting Akshay sir. Yes, so here is one very special personality with us, Mr. Akshay Gujarati. So he is passed out from, first of all, I'll introduce from beginning of his life. He is from Ahmednagar. He did his 12 till 12th. He did from one of the school in Ahmednagar. Then he went to Sinhagad College of Engineering, that is in Pune. He did his engineering BE in computers. Am I correct? Yeah, computer. And specialty of Akshay sir is he was a ranker throughout in his school days also, in college days also, and in engineering also. He was the first rank holder for in the 4th year. And obviously, because being very intelligent, intellectual, he got uh, he got placed into Accenture in Bombay, but he had some other interest to pursue. Then he decided that yes, I'll quit from Accenture's, which is a very lucrative job, which is very special job, which everybody wish to have such a job in such nice company. But he left that job and then he went ahead to pursue his masters. So he did masters in design, that is game design, जो आप सबका बहुत फेवरेट होगा. आई थिंक मोस्ट ऑफ आप खेले होंगे, मैं भी खेला हूँ different games like PUBG especially. So because he had interest in not playing, of course playing also he has interest, but he has interest in designing the game. So he did his masters in design from one of the best college in whole India. There are only 3 colleges in India which are specialized specially for design, that is National Institute of Design. There are only 3 out of them. He did from Bangalore, and then afterwards he did his projects also, different projects. Maybe next sessions I'll show you his projects also. He did some projects also in game design, and now currently he is working with Zynga. Zynga is not Zynga khane ka Zynga. Zynga is a one of the company game design company. So he is working with Zynga in Bangalore, and he is designing a game for all of you. So we have today, of course, he is supposed to be a guest, but today we have made him host. So he is there, and he will be on your behalf. He will be asking question to Prem sir. So I'll introduce to Prem sir also now. Prem sir, is your video on? Where is Prem sir? Yes, Yogesh sir. Am I visible? Yeah, where are you? I'm not able to see you. Yeah. You can spotlight him. Spotlight. Yeah. So we have Prem sir with us. He is also one of the very special person whom I always like to associate, whom I always want to know and learn from him. So he also did his BE in mechanicals from Sinhagad College of Engineering, and then MTech from IIT Bombay, SP Sardar Patel College of Engineering and IIT Bombay. Then he did his research fellowship with IIT Bombay, and then very successfully he completed everything. Then then he pursued, he has multifarious intelligence, so he decided that he would like to go into MPSC. He would like to appear for MPSC UPSC exams, so he appeared also. He was qualified also. 2017 he was qualified in MPSC SSC. And currently he is a very expert career counselor, and he, of course, he is doing it since 5 years now. In fact, I also get a lot of guidance from him to choose my career, so he's there for me also. So I really liked his way of explaining the things, and then the clear vision which he gives regarding the careers. So therefore I requested him, please, if he can have some sessions for all of you.
So we very kindly agreed to give sessions. So we will have 5 sessions if they complete. If everything is completed, then only 5 sessions, otherwise they may extend also. But we'll have 5 sessions regarding career counseling, career guidance. So in that you will be like given different options and different ways, like how we should choose the career. So many things are there actually that Prem sir will tell much better than me. So they will be there every week. Every weekend we will have those sessions. So at least today we have on Sunday evening. Next we will inform you when it will be there, and you please take advantage of his guidance. Really, generally if you see, in fact I also observe that in order to get a guidance we need to pay for such expert guidance, but he very kindly agreed to give it free of cost. So I really thank him. Actually, I really thank Prem sir for giving your valuable time for my all the students. And I wish that and of course welcome to all of my participants who are very special. So all of you, again, this is not going to be a मोनोटोनस सेशन जिसमें एक व्यक्ति लेक्चर देंगे फिर बोलेंगे ऐसा कुछ कुछ बोलेंगे, बाद में लास्ट में बोलेंगे कि हाँ समझ में आ गया क्या, फिर हम बोलेंगे यस सर, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय सर. नॉट दिस सेशन इज नॉट लाइक दैट. ये सेशन में आप उनको क्वेश्चन पूछने वाले हैं, वो भी आपको क्वेश्चन पूछेंगे जिसमें आपको कुछ अगर डाउट्स है आप डाउट्स पूछेंगे, या फिर आपको जो भी है वट एवर इज देयर इन योर माइंड रिगार्डिंग करियर, आपको डाउट्स है, आपको कुछ क्लियरिफिकेशन करना है, you can ask him freely. I purposefully chose both of these youngsters because you can gel with them much betterly than the people who have beards or who has what we say, all hairs are gone. So I don't want those people because it is very like we have large this gap is there of thought process, but these people are just recently passed out, so we can very easily ask them questions, or we can very easily learn from them. So here to Akshay sir and Prem sir, thank you very much to both of you and all participants. Please continue further. Akshay sir, please. First of all, I would like to thank you, Yogesh sir, for organizing this podcast, Career Guidance Podcast. And I would like to thank you. He has been my mentor since last 5 years, and he has been guiding in my career as well. And he has helped me in my studies very much. So what I am, so most of the credit goes to him. And I would like to welcome Prem sir today, who is our expert speaker, will guide us in our career guidance sessions. And so मैं हूं आपका होस्ट और ये है आपके दोस्त जिनका नाम है प्रेम, मेरा नाम है अक्षय. So हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जो करियर. Thank you so much, sir. And before we begin, again I would like to extend my gratitude to Yogesh sir for inviting us, even me and Akshay sir both, and because he's someone who is very very passionate about students. He wants the students to get the best guidance, the best of knowledge, and the best of everything basically. So I really would like to thank Yogesh sir for taking all the efforts in arranging such kind of a session, which I think would be of tremendous benefit to young students like you all. And we would be like Yogesh sir said, we would be discussing over a period of time, because career is such a big thing that it cannot be finished in 1 hour, right? So there are many things, and like Akshay sir will be there, and he would be he and I, we would be taking you through to many aspects of it. So I would like Akshay sir to take this session forward. Thank you so much. Thank you, Prem sir, for joining with us. Thank you, Yogesh sir, and all the participants. Thank you, Atharva, Bhargavi, Gitesh, Hardik, Himanshu, Mallar, Mohit, Namdev, Ragini, Shamsundar, Vaishnavi, Yadnesh. So welcome everybody, and sorry if I missed anyone in welcoming. So there's a quote from the famous scientist called as Einstein. आपने Einstein का नाम सुना होगा. So the quote goes like this, that everybody is a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. इसका मतलब ये है कि अगर एक मछली को पेड़ पे चढ़ने के ऊपर की कला से हम जज करते हैं तो उसको पूरी जिंदगी यही लगेगा कि वो
स्टूपिड है कि मुझे कुछ नहीं आता। सो इस कोट के साथ हम शुरू करते हैं। प्रेम सर से कुछ हम सवाल जवाब करेंगे और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ सारे स्टूडेंट से कि वो अपने क्वेश्चंस रेडी रखेंगे। एट द एंड वील हैव क्वेश्चन एंड आंसर्स, सो कि हमारा टाइम ज्यादा एक्सटेंड ना हो पाए। 7 to 8 हमारा सेशन टाइमिंग है। सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। So yes, Prem sir, I would like to ask a little bit introduction about yourself, your education, your work experience, and what exposure you have been up to till now. Okay, so thank you, Akshay sir, for that question. So firstly, I've started my journey with engineering, and while I was in engineering, I was not very clear that I really wanted to do it or not. But somehow, I got into engineering, and post that, I gave an examination called as GATE examination. I secured a decent score there, and I decided I was still not very much sure what I wanted to do in my life, and I had got a decent GATE score, so I went on to do my masters. I was getting a good government college, and I was getting into IIT Bombay, so I was excited about it. So I tried to give it a shot. I did my masters, and while doing my masters, I tried a lot of things, which I will be sharing with all of you in these sessions. And that is where when I found out what my true passion was, right? And then I chose to decide to prepare for civil services examination. I prepared for UPSC examination. I also tried for MPSC examination, got qualified in 2017. I also got qualified into staff selection commissions examination again in 2017. But and in parallelly, all this while, I was also involved into teaching. And at present, I am extensively involved in all the teaching kind of assignments, but teaching slightly different topics, slightly different aspects, not the conventional IIT, NEET, and this thing. So I am teaching to civil services aspirants and defense services aspirants, right? And anyone who is interested into developing an all-round personality. So that is the forte of education that I am into as of now. And like Yogesh sir told you, I'm into career counseling since a long time now. So that is again something which I am, up to these days. So as you can see, a lot of expertise in one. We say two in one, but this is a lot of many things in one. You can say we have a complete package over here. So be ready for the exciting questions and answers. So I would like to request all the students. I would also like to interact with the audience once. I wanted to know, students, how many of you are from class 10 standard? If you can please quickly show me your hands if you are from class 10 standard. Class 10 students. All right. Amazing. Ragini, Shreya, Mohit, Atharva, Himanshu. Amazing. So if you can just turn your videos on, तो हम आपके साथ अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएंगे। सो हम आपकी प्यारी सी मुस्कान भी देखना चाहेंगे। सो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वीडियोस ऑन कीजिए, तो कि सर को और पता चले कि उनके बच्चे कैसे हैं, और हम और गाइड करने में उनको भी और कॉन्फिडेंस और ये मिलेगा। Right. Yes. Okay, great. And how many of you are from class 9 standard? If you can please raise your hands. 9 standard students. Students who are presently in 9th. Okay. Students in 8th standard. Students in 8th standard. All right. 7th standard. Perfect. Okay. 6th standard, anyone? Okay. 5th standard. Too young, है ना? Okay, chalo, ठीक है. But now I think we have a fairly decent students from 7th standard up to 10th standard. So I think we are good to go. Yes, Akshay sir. सो सर का अटेंडेंस प्रोग्राम हो गया है, सो हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। सो अटेंडेंस नेक्स्ट टाइम से सर अटेंडेंस मार्क करने वाले हैं। सो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सारे के सारे स्टूडेंट्स हमने नोट किए हैं वो अगले टाइम भी प्रेजेंट होने चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गोज लाइक दिस, दैट व्हाट कैन बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग द इनिशियल फेज व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू earn a good living and to match their skill set, what a student can have their expectations from a good career? Okay, so I think that's quite a relevant question. Sir. Yes, Yogesh sir. Yeah,
can it be in Hindi, please? यस यस यस, ऑफ कोर्स यस। तो वही सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ऑन पॉइंट है कि क्या एक्सपेक्टेशंस हम लगा सकते हैं एक अच्छे करियर के साथ में। एक अच्छा करियर ऑप्शन आपको क्या दे सकता है, ठीक है। क्विकली कोई स्टूडेंट्स में से बताना चाहेगा कि एक अच्छा करियर ऑप्शन में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। एनीबडी फील फ्री टू स्पीक। आपको हिंदी में बात करना है, मराठी में बात करना है, इंग्लिश में बात करना है, आप बेझिझक होकर बात कर सकते हैं हमसे। क्या आपके एक्सपेक्टेशंस एक अच्छे करियर ऑप्शन से? हमारे प्रेम सर ना ही काफी नॉलेज फील्ड्स में एक्सपर्ट है, उनको सारे लैंग्वेजेस भी आती है, तो फिक्र मत कीजिए। फील फ्री, टर्न योर वीडियोस ऑन एंड इंटरेक्ट विद प्रेम सर। I think Himanshu was saying something. Hi, Himanshu. By a good career, we can expect that we should be able to earn the living, and we should have a good society status. Yes. So money very very important part है ना, but only money तो वो required नहीं है। जैसे हिमांशु ने उसके साथ ऐड भी किया कि स्टेटस भी होना चाहिए ना। whatever work और whatever job और whatever profession that you are in, आपको एक अच्छा रिस्पेक्टेबल लेवल पे आप अगर रहते हो तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं हम सबको पसंद है। तो चलो वेरी गुड, शुरुआत हो गई है। हिमांशु ने 2 पॉइंट्स कहे हैं, एक तो है मनी और दूसरा है स्टेटस या रिस्पेक्ट। और कोई पॉइंट्स आप सोच सकते हो? सर Yes. हम जो भी करियर कर रहे हैं उसमें हमें इंटरेस्ट होना चाहिए। ओके हाँ भाई, इंटरेस्टिंग तो होना चाहिए। क्यों अक्षय सर? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम इंटरेस्ट नहीं होगा तो फिर हम सिर्फ करियर को सिर्फ एज अ फॉर्मेलिटी करके हम लेके जाते हैं। सो दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट। तो यस, इंटरेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, बिकॉज विदाउट इंटरेस्ट फिर वो मैकेनिकल हो जाएगा। तो गुड पॉइंट देयर। हाँ उदय। Sir, life should be comfortable. हाँ, इट शुड बी कंफर्टेबल। ज्यादा एंजाइटी और ये नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो कंफर्टेबल। और सोचो। चलो पैसा मिल गया, रिस्पेक्ट मिल गया, कंफर्ट्स मिल गए, मजा भी आ रहा है, और क्या? और कुछ तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। श्रेया? We should also keep on learning new things. ओके गुड, कि लर्निंग अपनी खुद की We will- प्रोडक्टिविटी या स्किल्स। यस श्रेया? We will meet new people and we will have intellectual challenges. ओके यस, तो स्लाइटली एडवेंचर ऑन द एडवेंचरस साइड, कि कुछ तो नया, कुछ तो हैपनिंग होना चाहिए जॉब में, है ना। रूटीन नहीं होना चाहिए, कुछ तो नया, कुछ तो एक्साइटमेंट और ये होना चाहिए। बाय मीटिंग न्यू पीपल, बाय डूइंग एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स, राइट। एंड आई थिंक एक्साइटमेंट और हैपनिंग वाले जो प्रोजेक्ट्स है अक्षय सर भी काफी कर रहे हैं, तो हम उनसे भी जानेंगे उनके प्रोजेक्ट्स के बारे में, बिकॉज ही इज इनटू गेम डिजाइन एंड एवरीथिंग। तो या ओके, और कुछ और कोई बताना चाहेगा? और कोई ऐसा करियर ऑप्शन? एनीबडी एल्स? ओके, वुड यू ऑल्सो लाइक टू डू समथिंग विच इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी? मतलब आपको अगर ऐसा करियर ऑप्शन है जिसमें आपको, देखो हर करियर ऑप्शन में आपको पैसा मिलेगा। अगर आप हर करियर ऑप्शन बहुत अच्छे से ईमानदारी से करोगे, इंटेग्रिटी के साथ करोगे, तो पीपल विल रिस्पेक्ट यू। अगर आप हर करियर ऑप्शन में, मतलब जो भी आप करियर चूज करते हो उसमें, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू विल डू इट मोर पैशनेटली एंड यू विल हैव एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज एवरीवेयर। बट कैन यू ऑल्सो थिंक अबाउट वन थिंग, कि जो भी आप करियर चूज करें उसमें, इफ यू आर एबल टू सर्व द सोसाइटी, if you are able to serve the community, if you are able to serve the state in which you are living, if you are able to serve the country in which you are living, तो कितना अच्छा होगा। ये भी तो एक चीज होनी चाहिए, right? So this is very very important, right? This is like the fountainhead of all the other possibilities, मतलब money, creativity, knowledge और paycheck और your money aspect, है ना, respect aspect, ये सारी चीजें तो है। बट इसके साथ साथ अगर आपको ऐसा करियर ऑप्शन मिल जाता है जहां पर आप कंट्री की, कम्युनिटी की, सोसाइटी की सेवा कर सकते हो या सर्व कर सकते हो, तो यू विल फील एक्सट्रीमली हैप्पी एंड एक्सट्रीमली जॉयफुल डूइंग द काइंड ऑफ वर्क दैट यू आर डूइंग, right? So I think Akshay sir, these should be the common expectations that students can have from a good career option.
अमेजिंग अमेजिंग, एज राइटली सेड, जैसे स्टूडेंट्स के एक्सपेक्टेशंस थे, जैसे कि मनी होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, कंफर्ट होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, लेकिन उसके साथ ही साथ जैसे प्रेम सर ने आपने कहा कि एक सोसाइटी को कंट्रीब्यूशन भी होना चाहिए, उनको सोसाइटी को सर्व करते आना चाहिए, हमारे जो टैलेंट्स है हम किसी देश की, हमारे समाज की कुछ मदद कर सके। सो इसी पॉइंट के साथ हम अच्छा, इसमें एक छोटा सा मैं एग्जांपल थोड़ा सा मैं आपको ऐड करना जरूर चाहूँ जरूर जरूर। कि आप इमेजिन कर सकते हो कोई ऐसा व्यक्ति है एंड ही इज लाइक अ मल्टी बिलियनियर, है ना, बहुत ज्यादा रिच है, बहुत ज्यादा ये है, बट जब कोविड टाइम में द कंट्री वाज रीलिंग अंडर ऑल दीज स्ट्रेस एंड फाइनेंशियल स्ट्रेस एंड बहुत सारी चीजें आ रही थी, हेल्थ के क्राइसिस चल रहे थे, उस टाइम पे देयर वर टू टाइप्स ऑफ पीपल दैट वी सॉ इन द सोसाइटी, वन हु आर वेरी वेरी रिच but they didn't do anything for the country. At the same time, when we also had leaders like Mr. Ratan Tata sir, है ना, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, and he donated. We have so मतलब ideals like Ratan Tata sir कि जिन्होंने बहुत ज्यादा अपने मनी का, अपने स्टेटस का, अपने यू नो पोजीशन का इस तरह से इस्तेमाल किया कि he was trying to in a way serve the society. So I think that is something that we should expect from a good career option कि you know yeah. So yes, Akshay sir. जैसे प्रेम सर ने कहा, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल दिया रतन टाटा सर जी का। जैसे उन्होंने काफी सारा डोनेशन दिया, ऑक्सीजन सिलेंडर्स डोनेट किए, हॉस्पिटल्स में काफी सारा डोनेशन दिया। उसके साथ साथ एक जाने माने बॉलीवुड एक्टर भी है, मैं बोलना Right. चाहूंगा, सोनू सूद है, तो उन्होंने काफी हेल्प किया कोरोना के लिए। सो उनके काफी रिस्पेक्ट करते हैं। तो उन्होंने ना कि अपने खाली पैसों का स्टेटस का ना कि सही इस्तेमाल किया, बट एक स्टेटस भी सर्व करने से, जैसे हम बोलते हैं कि हमें स्टेटस मिलना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली एक लोग आपसे इंस्पायर होते हैं आपके जैसा एक्टर बनने के लिए, आपके जैसा एक सोसाइटी के लिए सर्व करने के लिए। सो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा अगला क्वेश्चन है कि इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए कि हम एक राइट करियर चूज कैसे करें। जैसे हमें पता है कि हमें सर्व करना है सोसाइटी के लिए, कंफर्ट भी होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, तो हमें राइट करियर चूज कैसे करें। सो एक काफी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है हर एक स्टूडेंट का। राइट। तो हाउ टू चूज द राइट करियर ऑप्शन, आई थिंक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार आपको भी लगता होगा, इतनी सारी चीजें आप लोग आपके सोसाइटी में देखते होंगे, शायद आप लोगों की क्या इच्छा है, मैं थोड़ा सा आप लोगों से जानना चाहता हूँ, आपने क्या सोचा है कि फ्यूचर में आप कौन से प्रोफेशन में या कौन से स्ट्रीम में आप जाना चाहते हो? कोई ऐसे आपने कुछ चीजें सोचा होगा तो फील फ्री, यू कैन रेज योर हैंड्स एंड देन स्पीक टू अस। क्या आपके जो सोचा आगे जाके क्या बनेंगे? हाँ, आपके जो ड्रीम करियर्स है, किसी को पायलट बनना है, किसी को डांसर बनना है, किसी को कुछ डॉक्टर बनना है, तो क्या सपने हैं आपके? सर आप हैंड रेज करके आपके बता सकते हैं ऑप्शंस। श्रेया, वैष्णवी, राकेश, हिमांशु, यस, स्वयं, भार्गवी, यस, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ स्वयं बोलिए। Sir, I want to be a homeopathic doctor. अमेजिंग। Okay, Vaishnavi, homeopathic doctor. Okay, all right. Next, Swayam. Sir, I want to become an industrialist. Okay, industrialist. Okay, excellent. Then Bhargavi. I also want to become a doctor. Okay, you also want to become a doctor. Great. I have something on the chat in the chat section. Mohit is saying food technology engineer. Interesting. Food technology engineer. Very interesting. Good. Yes. Malhar. Sir, I would like to become a game developer like Akshay sir. Acha. Amazing, amazing. Finally, someone aspiring for game developer. Amazing. Wonderful, wonderful. और बताओ, आपको जो मतलब जो भी आपने सोचा है कि सर, और ऐसे जो भी आपकी ड्रीम है, आपने सोचा है कि यार ये मुझे करने में बहुत मजा आएगा और आई वुड रियली फील हैप्पी इफ आई गेट टू दिस पॉइंट, है ना, वो कहाँ कैसे जाना है, क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी, वो हम डिस्कस करने ही वाले हैं, उसके लिए भी रेस्ट अश्योर्ड। बट आपके क्या ड्रीम्स है एट प्रिलिमिनरी लेवल, वो सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, वो आगे चर्चा करेंगे। जी रागिनी। I want to be an English professor. English professor, interesting, very nice, है ना? Okay, linguist. Next, Uday is saying actor or IAS officer. Great, actor or IAS officer, wonderful. और कोई है? अच्छा, डिफेंस सर्विसेज में कोई इंटरेस्टेड? डिफेंस सर्विसेज, ओके। देन सिविल सर्विसेज में उदय ने बताया कि उदय इंटरेस्टेड है। और डॉक्टर्स में और कोई है जो डॉक्टर्स बनना चाहते हैं फ्यूचर में? आप यू कैन रेज योर हैंड्स आल्सो।
doctors. Okay, Himanshu, Aditi. Okay, then Yes, Bhargavi. Bhargavi, yes. नहीं सर, वो डॉक्टर के लिए पूछ डॉक्टर रही के थी। लिए था. अच्छा, Okay. ठीक है. उसके बाद Sumendu is saying rocket designer. Okay, all right. So we have a bunch of students. मतलब किसी ने कहा डॉक्टर. Shreya is saying me personally, she want to become a judge. Okay, a judge. Interesting. Very nice. है ना? इंडिया में बहुत कमी है जजेस की, है ना? And India really needs expert and intellectual judges, and there's a lot of potential in that stream as well, right? So very interesting. अच्छा, किसी ने chartered accountancy? Anybody interested into becoming a chartered accountant? CA? Entrepreneurs? Anyone? Entrepreneurship? I think someone said that. Himanshu. Himanshu said, I think he wanted to become an industrialist. And okay, interesting. Okay, you want to become a detective. Okay, so I can tell you how to become a detective. And there are two types of detective: private detectives, public detective. The public detective you can become through civil services and everything. तो उसके बारे में भी अपन बात करेंगे. Okay, all right then. So I have known, मतलब I have understood कि आपके क्या क्या choices या क्या क्या dreams रहे हैं. And I would tell you many more things जिसके बारे में शायद आपने पढ़ा नहीं होगा, जिसके बारे में आपने शायद कहीं पे सुना नहीं होगा, कि ऐसे कौन से स्ट्रीम्स है, वो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे. ठीक है, ओके. बट सवाल ये उठता है जो अक्षय सर ने मुझसे पूछा था, और कि क्या एस्पेक्ट्स हमने रखने चाहिए, है ना, क्या एस्पेक्ट्स हमने ध्यान में रखने चाहिए करियर ऑप्शंस को चूज करते वक्त. ठीक है, उस क्वेश्चन को थोड़ा सा ना इन डिटेल अपन चर्चा करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, ओके. सबसे पहली चीज मैं आपको पूछता हूँ कि एक ये बहुत कॉमनली अंडरस्टूड चीज है, बट फिर भी लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. अगर सचिन को क्रिकेट खेलने में मजा नहीं आता था, है ना, तो वो एक बहुत ही अच्छा क्रिकेटर बन पाता था क्या? ऑब्वियस आंसर बिल्कुल भी नहीं, है ना, बिल्कुल भी नहीं, राइट. तो इंटरेस्ट इज समथिंग विच इज एट द बेसिक पॉइंट है, मतलब दैट इज द फोकल पॉइंट कि जहां से चीजें शुरुआत होती है. इंटरेस्ट, कि इंटरेस्ट होना चाहिए आपको वो करने में. ठीक है. अब दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि सर ठीक है चलो इंटरेस्ट भी आ जाएगा, और पता कैसे चले कि मेरा इंटरेस्ट कहां पर है ना, पता कैसे चले कि मेरा इंटरेस्ट कहां पर है. तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तीसरा, आपने इंटरेस्ट पता कर लिया, ठीक है. उसके बाद में एक और चीज है, आपका इंटरेस्ट बहुत है, क्रिकेट खेलने में, या फिर आपका इंटरेस्ट बहुत है डांस करने में, बट यू आर नॉट एबल, यू आर नॉट गुड एट इट. आपका इंटरेस्ट बहुत है क्रिकेट खेलने में, बट आप उतने बेहतरीन नहीं हो, उतने स्किल्ड नहीं हो उस चीज में, तो आपको आगे जाके सक्सेस मिलेगी क्या? ये सोचो. आपका इंटरेस्ट बहुत है, आपकी विल बहुत है ना, यू वांट टू बिकम एन एक्टर, यू वांट टू बिकम अ क्रिकेटर, आपकी इच्छा बहुत है, पर आप में स्किल्स की कमी है, तो आपको सक्सेस मिलेगा क्या उस करियर पाथ पे? नो, वो नहीं. चलो एक और इसमें एक और डायमेंशन इसमें ऐड करते हैं. आई एम श्योर आप लोग मैथ्स के स्टूडेंट्स हो, है ना, तो एक डायमेंशन हमने इनकॉर्पोरेट किया, दैट इज ऑफ इंटरेस्ट. सेकेंड डायमेंशन जो हम इसमें लेके आए थे वो थे आपके स्किल का. तीसरा डायमेंशन है कि आपका इंटरेस्ट बहुत है उसमें, ठीक है, आपका स्किल भी बहुत है, पर अगर उस चीज के लिए कोई आपको पैसे नहीं देगा, वो जो भी चीज है उसके लिए अगर आपको कोई पैसे नहीं दे रहा, तो क्या वो अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है क्या? यू आर गुड एट इट, you are interested in it, you are good at it, but no one is ready to give you money for it. Can it be a good career option? कोई आपको उसके लिए पैसे नहीं देने वाला. और if I have to put it in a different way, the third dimension is, I'll put it in a different way, कि जो भी आप कर रहे हो that is not useful for the society. that is not useful for the society. तो 3 डायमेंशंस मैंने आपको बताया. आपके करियर जो है ना, उसमें ये 3 डायमेंशंस होने चाहिए. पहला डायमेंशन कि आप उस करियर ऑप्शन में इंटरेस्टेड होने चाहिए. दूसरा डायमेंशन, आप उस करियर में आपके स्किल्स बहुत अच्छे से होने चाहिए. तीसरा डायमेंशन, दैट द थिंग दैट यू आर डूइंग शुड बी यूजफुल फॉर द सोसाइटी, ओनली देन दे विल पे यू फॉर इट. ठीक है. तो आज फॉर समवन लाइक अक्षय सर,
है ना. ही इज इनटू गेम डिजाइन. क्यों? बिकॉज ही इज इंटरेस्टेड. सेकेंड, ही इज मतलब मे बी ही इज वेरी स्किल्ड एट इट. एंड थर्ड, बिकॉज मार्केट की डिमांड है, पीपल आर डिमांडिंग गेम्स, पीपल आर डिमांडिंग एंगेजमेंट, दैट इज व्हाई he is able to contribute in that way, है ना. He is doing something that is that can be put into use by the society. So these are the three things that you should consider, है ना. कि सबसे पहला है आपका इंटरेस्ट. अपन एक एक चीजों पे उस पर आते हैं. इंटरेस्ट. अब इंटरेस्ट कैसे आइडेंटिफाई करें? कोई बता सकता है क्या? हाउ कैन यू पिक योर इंटरेस्ट और हाउ कैन यू फाइंड योर पैशन? कैसे आप डिटरमाइन कर सकते हो? कैन एनीबडी would you like to answer? कि कैसे आप आपका इंटरेस्ट पता कर सकते हो? Any ideas? कैसे पता करेंगे अपना इंटरेस्ट क्या है? Yes, अथर्व, भार्गवी, वैष्णवी, मोहित, प्रथमेश, रागिनी, श्रेया, श्याम सुंदर, स्वप्निल, है ना. और उदय. डोंट वरी, मतलब कोई सही और गलत जवाब है नहीं इसमें. आपको जो लगता है आप बोल सकते हो. कैसे सर, पता चलेगा? सर, जब हम कुछ करते हैं तो उसमें हम सबको सेटिस्फेक्शन मिलता है. हाँ, तो उसके लिए क्या है, अलग अलग चीजें करना जरूरी है. अगर हम सेम चीजें करेंगे, ठीक है, तो हमें हमारे इंटरेस्ट ही नहीं पता चलेंगे, दूसरी चीजों में हमारा इंटरेस्ट है या नहीं है. तो फर्स्ट थिंग इज यू नीड टू ट्राई टू नो योर सेल्फ. और खुद के बारे में कैसे पता चलेगा? जब आप अलग अलग चीजें करोगे. आपने जिंदगी में कभी डांस नहीं किया तो कहीं पर आप डांस करके देखो. आपने जिंदगी में स्पोर्ट्स नहीं खेला अभी तक, खेला ही होगा वैसे तो सबने, पर अलग कोई स्पोर्ट खेल के देखो. ठीक है, मैं स्पोर्ट्स बोल रहा हूँ, गेम नहीं बोल रहा हूँ, है ना. तो आप फिजिकल स्पोर्ट्स खेल सकते हो, है ना. और गेम थोड़े से इंटेलेक्चुअली भी अच्छे रहेंगे, है ना. तो आपको एक्सप्लोर करना होगा. अगर आपने कभी कॉन्फिडेंटली या स्टेज पे, जैसे अगर आपने कोई किसी चीज की चर्चा नहीं की या कुछ नहीं किया, तो आपको थोड़ा सा स्टेज करेज चेक करने के हिसाब से यू शुड मे बी ट्राई टू पार्टिसिपेट इन सम एक्टिविटीज जहां पर आपका स्टेज करेज चेक हो, है ना. यू शुड ट्राई टू टेक सम लीड इन ऑर्गेनाइजिंग एनीथिंग, मैनेजिंग एनीथिंग. तो आपको आपके लीडरशिप स्किल्स या मैनेजमेंट स्किल्स के I guess. 7th or 8th standard, है ना. तो am I audible clearly? Yes, Prem sir, you're audible. Yeah. You're breaking in between. I guess your connection is weak. Am I audible now? Yeah, you're perfectly audible now. Yes, Prem sir. Sorry for technical issues. I don't know if my connection is my connection okay? Yeah, it is breaking in between. बीच में रुक के आ रहा है आपका आवाज. Okay. अब ठीक है? हाँ, अब ठीक है Prem sir. Yes. So I'll continue from where we left. Yeah. Okay. So सबसे पहला है आइडेंटिफिकेशन और स्पॉटिंग योर इंटरेस्ट. इंटरेस्ट स्पॉट करने के लिए आपको अलग अलग चीजें आप एक्सप्लोर कर सकते हो, अलग अलग चीज. तो क्या क्या चीजें हैं क्या नहीं, वो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं. बट ये है कि सही करियर ऑप्शन चूज करना है अपने बारे में, तो यू नीड टू लुक विद इन योरसेल्फ. यू नीड टू ट्राई एंड नो व्हाट योर स्किल्स आर, व्हाट योर स्ट्रेंथ्स आर, व्हाट योर वीकनेसेस आर. आपको वो आइडेंटिफाई करने होंगे, क्या करने में आपको मजा आता है और क्या करने में आपको उतना मजा नहीं आता है. ठीक है, तो आप अलग अलग चीजें करके, स्पोर्ट्स है, म्यूजिक है, आर्ट एंड कल्चर है, स्टडीज है, रीडिंग है, पब्लिक स्पीकिंग है ना. देयर आर मेनी थिंग्स दैट यू कैन डू, एंड फॉर दैट यू विल हैव टू टेक सम एक्शंस. if you are taking the same actions, you will get the same results. You'll have to take some different actions to get some different results. All right, so that is the first point कि आप interest identification कैसे कर सकते हो. Once you have identified कि आप पे क्या क्या इंटरेस्ट है, उसको एक पेपर पे ना लिख लो कि मुझे अच्छा लगता है, मुझे डांस करना अच्छा लगता है, मुझे एक्टिंग करना अच्छा लगता है, मुझे मैथ सॉल्व करना अच्छा लगता है. जो जो चीजें आपको अच्छी लगती है ना. मुझे मूवी देखना अच्छा लगता है, या मुझे स्पोर्ट्स खेलना अच्छा लगता है, स्पोर्ट्स में भी मुझे फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है. जो जो चीजें आपको इंटरेस्टिंग लगती है. इंटरेस्टिंग का मतलब क्या
कि किसी को कहना नहीं पड़ेगा कि यार ये चीजें करो, है ना, आप खुद से वो करोगे, ठीक है। एकेडमिक्स के हद तक बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें सच में मैथ्स बहुत पसंद आएगा, ये आएगा। एंड समवेयर अगर आप उसमें भी जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, मैं आपकी पढ़ाई के रिलेटेड अगर बात करूं, जितना आप उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करके पढ़ोगे तब जाके आपको पढ़ाई भी बर्डन जैसी नहीं लगेगी और यू विल फील वेरी हैप्पी रीडिंग और स्टडिंग व्हाटएवर यू आर डूइंग, ठीक है। तो जो जो चीजों में आपको इंटरेस्ट आया ना, उन सब की एक लिस्ट बना लो, नंबर 1। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड लिस्ट। सेकंड लिस्ट इज दैट जो भी लिस्ट आपने पहली बनाई है उसमें से कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जिसमें आपकी स्किल बहुत अच्छी है, मतलब जिसमें लोग आपकी शायद तारीफ करते हैं कि अरे अथर्व आपका ना बैडमिंटन बहुत अच्छा आप खेलते हो, आपके रिफ्लेक्सेस बहुत स्ट्रांग है, या फिर गायत्री आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे बात करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या किया, आपके जितने भी इंटरेस्ट वाली चीजें हैं उसको लिख दिया। दूसरा, आपके स्किल्स कहाँ कहाँ अच्छे हैं वो आपने आइडेंटिफाई कर लिए कि और मतलब आपका इंटरेस्ट भी है पब्लिक स्पीकिंग में और आपका स्किल भी है वो, तो ये मैपिंग हमें करनी है guys. Am I making sense? Absolutely, Prem sir. I guess even I didn't know while choosing my career about all these 3 points, but all these 3 points absolutely make sense. जैसे कि हम देख सकते हैं प्रेम सर को वो खुद काफी चीजें कर चुके हैं। दैट ही इज अ मैकेनिकल इंजीनियर, उन्होंने एमटेक किया है, एमपीएससी एसएससी क्वालिफाइड है, अभी सिविल सर्विसेज सिखाते हैं। तो काफी सारे उन्होंने इंटरेस्ट उनका खुद का एक्सप्लोर किया। देन ही फाउंड आउट व्हाट ही इज गुड एट, जैसे अभी हमें गाइड कर रहे हैं करियर के लिए। एंड ऑब्वियसली वो सोसाइटी के लिए डिमांड है, जैसे आप सब बच्चे आज आ रहे हैं उनके लिए, सो ऑब्वियसली ये डिमांड है। सो हम देख सकते हैं कि ये जो तीनों पॉइंट उन्होंने बताया उन्होंने खुद अपने लाइफ में अप्लाई किए हैं, इसलिए आज वो इतने सक्सेसफुल है और हमें गाइड कर सकते हैं। So absolutely all the 3 points were amazing and they make sense. I would just like to take this conclude this point कि अगर आप ये स्टेप्स कर लेते हो, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, बट इफ यू आर वेरी मच ऑब्जर्वेंट एंड आई एम श्योर अगर पेरेंट्स भी इसको इस आज के सेशन को अटेंड कर रहे हैं तो समटाइम मतलब पेरेंट्स कैन आल्सो प्रोएक्टिवली पार्टिसिपेट, पेरेंट्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंड वो भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं जहां पर द स्टूडेंट्स आर डूइंग वेरी वेल, उनका इंटरेस्ट बहुत अच्छा है और उनके स्किल्स भी बहुत अच्छे हैं। वहां पे कई बार पेरेंट्स ऑब्जर्व करते रहते हैं बच्चों को कि हाँ इसका डिसीजन मेकिंग स्किल्स बहुत अच्छा है, इसका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, कोई बच्चों में बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस होता है ना। तो ये चीजें अगर पेरेंट्स भी आइडेंटिफाई करेंगे, स्किल मैपिंग है ना वो चीज। और तीसरी चीज, जो आपके इंटरेस्ट है, जो आपके स्किल्स है, उसका उनको उस कॉम्बिनेशन को लेके हम किस तरह से सोसाइटी को सर्व कर सकते हैं, कुछ तरह से एक ऐसा कुछ काम कर सकते हैं जिसके लिए सोसाइटी के हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो दैट आई थिंक दैट इज वन थिंग दैट विल हेल्प अस रियली अंडरस्टैंड कि हमारा करियर पाथ हम कैसे चूज करेंगे, क्या करेंगे, राइट। यस अक्षय सर। एक चीज मैं कहना चाहूंगा प्रेम सर, जैसे आपने ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया कि जैसे आपने बताया कि पेरेंट्स कैन आल्सो एक्टिवली पार्टिसिपेट इन स्टूडेंट्स करियर चूजिंग ऑप्शंस। सो जैसे काफी सारे पेरेंट्स हैं जो आज ज्वाइन नहीं कर पाए, लेकिन जो स्टूडेंट्स है, तो क्या आपको लगता है कि ये जो 3 पॉइंट्स है ये स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करे एंड देन पेरेंट्स भी उनको हेल्प करे, एक पेरेंट्स और चाइल्ड डिस्कशन हो ताकि उनको हेल्प, कुछ कहना चाहेंगे इसके ऊपर? एब्सोल्युटली एंड आई थिंक स्टूडेंट्स आप लोगों ने आपके जो भी मतलब इस तरह के स्पेशली करियर रिलेटेड जो व्यू पॉइंट्स है, डेफिनेटली आपने पेरेंट्स के साथ शेयर करने चाहिए। पेरेंट्स के भी व्यू पॉइंट्स को ना मतलब समझ के लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स का कुछ अलग ओपिनियन होगा, आपका कुछ अलग ओपिनियन होगा, तो आप सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हैं, पेरेंट्स के ओपिनियंस को सुन सकते हैं, ठीक है। आपकी ओपिनियन, पेरेंट्स की ओपिनियंस, अगर उसमें सिमिलैरिटी है, अगर उसमें एक सिंक्रोनाइजेशन बैठता है तो बहुत अच्छी बात है। बट इसमें भी अगर कुछ डिफरेंसेस है तो आप उन डिफरेंसेस को योगेश सर की हेल्प से, है ना, अक्षय सर की हेल्प से, जहां जहां पॉसिबल होगा मेरे हेल्प से, हम लोग उन डिफरेंसेस को भी आयन आउट करने में आपकी मदद कर सकते हैं, ताकि स्टूडेंट, पेरेंट, है ना, एंड टीचर, इन तीनों में एक अगर हम हार्मनी बना के रख सकते हैं ना, तो आपको आगे का जो करियर पाथ है वो आपका बहुत ही सीमलेस हो जाएगा। आपके पेरेंट्स को पता होगा कि हम ये क्यों कर रहे हैं, मतलब आपके स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, स्किल्स क्या है और आपके इंटरेस्ट क्या है, उसके हिसाब से पेरेंट्स को पता होगा, आपको पता होगा कि हम क्या कर रहे हैं, और आपके जो भी टीचर्स कंसर्न है उनको भी पता होगा। तो एवरीवन वुड बी ऑन द सेम पेज एंड दैट वुड रियली हेल्प यू गो एंड टेक दैट करियर इन द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल पर, है ना।
अमेजिंग अमेजिंग, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया प्रेम सर ने. सो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं. लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ द डे ऑफ दिस पॉडकास्ट. सो जैसे कि ये 3 पॉइंट्स हमें अप्लाई करने चाहिए जो कि बहुत जरूरी है, बट कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि हाँ ये 3 पॉइंट्स है लेकिन देखेंगे, फिर कुछ टाइम बाद सोचेंगे, 10th होने दो, 12th होने दो, फिर कुछ समय है. तो अभी ही क्यों सोचना, ये काफी क्यों इंपॉर्टेंट है कि अभी हम करियर के बारे में सोचे? इसके ऊपर आप कुछ बता सकते हैं? yes. Very actually very important question I would say अक्षय सर, कि अभी why now, है ना. कोई स्टूडेंट आप में से सिर्फ 7th में होगा, कोई सिर्फ 8th में है, कोई 9th में है, कुछ स्टूडेंट्स 10th में है. अभी क्यों जरूरी है? बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस स्टेज. जितने जल्दी आपको आपके टैलेंट्स, आपके स्किल्स और आपका करियर पाथ दिख जाएगा ना, उतने जल्दी आप उसमें एक एक्सीलेंट लेवल पे एक्सीलेंस अचीव आप कर सकते हो. आप में से आई एम श्योर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें पढ़ना बहुत पसंद होगा, है ना. एंड इफ यू आर फॉन्ड ऑफ रीडिंग, यू कैन रीड autobiographies or biographies of all the experts or stalwarts. Most of them identified their passions or their interest very early in their lives. एक यंग एज में उन्होंने तय कर लिया था, है ना, कि मुझे सिंगर बनना है, मुझे क्रिकेटर बनना है, या मुझे सिविल सर्विसेज करना है. बहुत सारे उन्होंने क्लास 6 क्लास 7th में ही, जब कोई फेलिसिटेशन सेरेमनी हुआ था उनके स्कूल में और एक कलेक्टर आए थे, they got inspired by the whole thing, and that is when they decided that they want to become a collector or an IAS officer. और that memory still etched in their mind. और वो चीज ना उन बच्चों में इतना पैशन होता है करने का कि वो नॉर्मल बच्चों को कभी भी पीछे छोड़ देते हैं, क्योंकि उनका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्पस है. उन्होंने बचपन से अपने ड्रीम को ना नर्चर किया है. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हमारे गोल्स एक राइट टाइम एक और अर्ली एज में स्टार्ट करेंगे, इट इज ऑलवेज अ गुड एडवांटेज टू स्टार्ट अर्ली, है ना. हम जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना जल्दी हम एक्सेल कर पाएंगे. एंड आपने कई बार ऑब्जर्व भी किया होगा, बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी टॉप करते हैं, जैसे नीट में, है ना. सम एस्पायरेंट्स 720 on 720 इस बार भी उन्होंने लेके आए, लास्ट ईयर भी लाए थे. इस बार भी कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने 360 on 360 स्कोर किया JEE मेंस एग्जामिनेशन में, और ऐसी बहुत सारी एग्जामिनेशन है. तो मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स इन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि हमें JEE प्रिपेयर करना है, हमें नीट प्रिपेयर करना है, हमें NDA प्रिपेयर करना है, CA बनना है या UPSC करना है, जो भी करना है. तो अभी से अगर हम थोड़े से वॉचफुल रहेंगे तो आई थिंक हम हैप्पीली ये सब चीजें को कर पाएंगे. आपके इंटरेस्ट की फील्ड होगी, आपने पूरा एनालिसिस करके किया होगा, और ट्रस्ट मी 90% 95% स्टूडेंट्स ना ब्लाइंडली चलते हैं. किसी ने बोल दिया IIT करो, हाँ IIT करेंगे. किसी ने बोल दिया नीट करो, नीट करेंगे. 95% जो भीड़ होती है, 95% जनता इसी कैटेगरी में लाइक करती है. यू कैन बी अमंग्स दोज 5% पीपल इफ यू थिंक वाइजली. एंड आई थिंक योगेश सर ने मुझे जब कहा था इसके बारे में, तो उन्होंने टॉपिक भी बहुत अच्छा रखा था कि चूजिंग करियर वाइजली. एंड आई थिंक वाइज वो लोग होते हैं जो समय से पहले ही चीजों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और शुरुआत करते हैं. I think this is perfectly the right time, the right opportunity, and I'm so happy that you are in such good hands, है ना. मतलब योगेश सर जैसे टीचर्स अगर हैं आपके, very fortunate to be in the right hands. and यहाँ पर आपको किसी भी चीज में हेल्प लगती है तो ये लोग तो आपको ऐसे प्रोवाइड करेंगे ही, राइट. एब्सोल्युटली सही कहा प्रेम सर. जैसे आपने कहा कि जितने जल्दी हो सके हम हमारे करियर की प्लानिंग कर सकते हैं कि हमारा इंटरेस्ट कहाँ है, हम किसमें अच्छे हैं, और हम सोसाइटी को कहाँ पर हम अच्छा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे. आई गेस प्रेम सर का कनेक्शन वीक है. हेलो प्रेम सर. यस, आपका वीडियो ऑन है बट आपका आवाज नहीं आ रहा है. आवाज नहीं आ रहा है? हाँ, अभी आ रहा है. You're back. Yes. Yes. So I was saying the same कि जैसे जितना जल्दी हो सके हम हमारे करियर के बारे में हम सोच सकते हैं, ताकि हम हमारा इंटरेस्ट जल्दी से जल्दी ढूंढ कर हम उसके ऊपर उसकी तैयारी शुरू कर सकते हैं. सो आज का यही मुद्दा था कि
कैसे करियर का इंट्रोडक्शन कैसा हो और क्या एस्पेक्ट्स होते हैं राइट करियर चूज करने के, और अभी ही हमें क्यों सोचना चाहिए करियर के बारे में। तो हम आज का सेशन यही रैप करते हैं और हम हमारा क्वेश्चन आंसर राउंड स्टार्ट करते हैं। अगर कुछ स्टूडेंट्स को कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स हो तो दे कैन फ्रीली आस्क प्रेम सर और मे बी योगेश सर, both we all can help you answering the questions. So yes, one more thing, I would like to just give a brief sneak peek into what is going to happen in the next sessions, आगे के सेशंस में, क्योंकि आप लोग उसमें इंटरेस्टेड भी रहेंगे शायद, तो मैं अभी बता देता हूँ बिफोर एनीवन मे बी लीव्स। सो फर्स्ट थिंग इज, आगे के सेशन में हम सारे करियर ऑप्शंस को एक एक करके वन बाय वन उसको हम लोग डिग डीप करेंगे कि व्हाट इज द करियर ऑप्शन, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज इन दैट करियर ऑप्शन, व्हाट इज द प्रोसेस हाउ टू गेट इनटू दैट करियर ऑप्शन, कि क्या एग्जाम्स आपको देनी पड़ेंगी, उसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, ये थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग वहां पर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो बीट इंजीनियरिंग, बीट मेडिकल, बीट रिसर्च, सिविल सर्विसेज, डिफेंस सर्विसेज, है ना, तो ये सारे करियर ऑप्शंस को हम एक एक करके अपॉर्चुनिटीज, उनके रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो सब हम आगे के सेशंस में डिस्कस करने ही वाले हैं। आज के सेशन को लेके या इन जनरल, इसके अलावा जो मैंने आपको कहा, उसके अलावा भी ऐसा कोई करियर ऑप्शन है या आपके मन में कोई क्वेरी है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि आप, मतलब हमसे चाहते हैं कि हम उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दें, तो यू कैन फील फ्री टू आस्क द क्वेश्चंस, या यू कैन रेज योर हैंड्स और मे बी write us in the chat section, whatever, we are here. Yes, Swayam. Yes, Swayam, yes. Sir, after 10th means if I score less marks, then it will affect my future or not? See, it depends. What do you decide to do? ठीक है, if you go for engineering, या तुम IIT की प्रिपरेशन करना चाहते हो, CET की प्रिपरेशन करना चाहते हो, या मेडिकल की प्रिपरेशन करना चाहते हो, 10th के मार्क्स एज सच वहां पर कंसिडर नहीं होते। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 10th के मार्क्स कंसिडर नहीं होते, प्रोवाइडेड अगर वो एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से नीचे हो, तो मतलब अगर वो सर्टेन थ्रेशोल्ड से नीचे है, जैसे 50% से कम है और ये सब है, तब जाके प्रॉब्लम हो सकती है। बट अदर देन दैट it does not make any difference altogether. Number one. Number two, अगर आप फॉरेन स्टडीज के बारे में फ्यूचर में सोचते हो, यू वांट टू गो अब्रॉड एंड स्टडी, वहां पर आपके 10th के स्कोर कंसिडर करते हैं वो लोग। तो अगर आप फॉरेन स्टडीज के बारे में सोचते हो, वहां पे कंसिडर करेंगे। नंबर टू, अगर आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट MBA अगर करना चाहते हो, इंडिया के जो टॉप लेवल कॉलेजेस हैं, जैसे IITs होते हैं ना इंजीनियरिंग के लिए, उसी तरह से मैनेजमेंट या MBA करने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIMs होते हैं। अगर आप IIMs में से भी पढ़ना चाहते हो, तो वहां पर भी आपको 10th का एक अच्छा स्कोर रिक्वायर्ड है। बट अदर देन फॉरेन एजुकेशन, अदर देन IIM, आपके 10th के स्कोर्स ज्यादा मैटर नहीं करेंगे। बट दैट डज नॉट मीन कि आप ज्यादा पढ़ाई ना करो, है ना, आपको अच्छे स्कोर लाने हैं और आप डिसेंट स्कोर ला सकते हो, है ना, कि पढ़ना कैसे है और वो सब। अगर आपको उसमें डाउट है, तो वो हम कभी आगे के सेशंस में भी डिस्कस कर सकते हैं कि आप किस तरह से 10th बोर्ड्स की अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, बिकॉज इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू स्कोर इन बोर्ड एग्जाम्स, राइट? Yes, Vaishnavi, you can unmute and ask. सर, मैं ड्राइंग में, स्पीकिंग में और राइटिंग में बहुत अच्छी हूँ और मुझे वो सब बहुत पसंद भी है। सो बेस्ड ऑन दैट मुझे क्या करियर चूज करना चाहिए? आप कौन से क्लास में हो वैष्णवी? सर, मैं 9th स्टैंडर्ड में हूँ। आपने कहा ड्राइंग, स्पीकिंग और राइटिंग में, यानी कोई अगर मुझे टॉपिक दिया जाए तो मैं उस पर अच्छी तरह बोल सकती हूँ या लिख सकती हूँ। ओके, एंड व्हाट इज योर लैंग्वेज ऑफ इंटरेस्ट, लाइक डू यू राइट इन इंग्लिश और हिंदी और मराठी? Mostly English and Hindi. Okay, mostly English and Hindi. All right. And have you given any exams like elementary, intermediate, ऐसे कोई exams आपने दिए हैं for drawing? हाँ सर, elementary दी है मैंने। Okay, and how was your score? B grade. B grade. Okay. ठीक है। So there are plenty of career option. I think अक्षय सर इसके बारे में बहुत अच्छे से बता सकते हैं, तो पहले अक्षय सर से सुन लेते हैं और इनकेस मुझे कुछ ऐड करना होगा तो I'll add. Yes, अक्षय। सो वैष्णवी, अगर आप ड्राइंग में और राइटिंग में अगर आप काफ़ी अच्छे हो, सो यू कैन गो यू कैन चूज, आप रिसर्च फेलो बन सकते हैं, कि क्योंकि आपको लिखना पसंद है, तो रिसर्च में काफ़ी आपको रिसर्च करना होता है, आर्टिकल्स पढ़ने पड़ते हैं और उसके बारे में आपको
डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं. सो दैट इज वेरी गुड ऑप्शन. तो रिसर्च करने के लिए आप अलग अलग करियर ऑप्शंस चूज कर सकते हैं. प्रेम सर हमें बता सकते हैं, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस होता है, फिर आइसर होता है पुणे में. सो हम डिस्कस करेंगे अगले सेशंस में. एंड अगर आप ड्राइंग में ज्यादा इंटरेस्ट रख सकते हो तो आप डिजाइन एज अ मेन करियर चूज कर सकते हैं. जैसे डिजाइन में काफी अलग अलग ऑप्शन आते हैं, जैसे प्रोडक्ट डिजाइन, फैशन डिजाइन, फिर गेम डिजाइन. सो इसमें ड्राइंग और स्केचिंग काफी इंपॉर्टेंट होता है. जैसे आपने एलिमेंट्री का एग्जाम दिया है, सो आई वुड रिकमेंड टू गो फॉर इंटरमीडिएट एज वेल, क्योंकि आपका एक पोर्टफोलियो, जो आपका जो सर्टिफिकेट्स होगा और एक अचीवमेंट होगा, वो एक स्ट्रॉन्ग बन जाएगा. और उसके बाद आप काफी डिजाइन कॉलेजेस में कैसे एग्जाम्स, कैसे एडमिशन लेनी है, उसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं कि उसके एंट्रेंस टेस्ट कौन से होते हैं. So yeah, design and research, this can be your two main options. Yes. So as you go ahead, you'll discover more, but we'll see, we'll talk about it in future sessions. Yes, and I would also like to add a few career options in that. डिजाइन के साथ साथ, मतलब आप जैसे अक्षय सर ने किया है ना, डिजाइन भी आप कर सकते हो. प्रोडक्ट डिजाइन है, विजुअल डिजाइन है, बहुत सारे डिजाइन में कम्युनिकेशन डिजाइन है. उसके साथ साथ अगर आपका विजुअलाइजेशन है ना, वो भी अगर काफी पावरफुल है, इमेजिनेशन पावरफुल है, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है, तो आर्किटेक्चर इज वन सच ऑप्शन जो कि बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट में होने वाला है. इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री. आगे जाके इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब आगे 10, 15, 20 साल में इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है. एंड आपको पता है इंडिया में पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा है. तो वी नीड टू हैव स्मार्ट स्पेसेस, वी नीड टू हैव वेरी गुड स्पेसेस, कि जहां पर हम वेल प्लान्ड स्पेसेस हमें चाहिए. तो उसके लिए बहुत अच्छे आर्किटेक्ट्स रिक्वायर्ड है. तो आर्किटेक्चर इज वन ऑप्शन जहां पर आप जा सकते हो. उसके लिए आपकी डिजाइनिंग स्किल्स, ग्राफिक स्किल्स जो है वो चेक किए जाएंगे, आपके ड्राइंग स्किल्स चेक किए जाएंगे. तो दैट इज वन मोर ऑप्शन, आर्किटेक्चर. देन जैसे कि सर ने कहा डिजाइन, ये दोनों ऑप्शन उस फील्ड में आते हैं. उसके रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कौन से हैं वो आगे कवर होने ही वाला है. नाटा इज फॉर आर्किटेक्चर, यूसीड इज फॉर डिजाइन, एंड एनआईडी का भी एंट्रेंस एग्जाम होता है. तो ये सारे एग्जाम्स आगे हम उसके बारे में चर्चा करेंगे. एंड यू ऑल्सो स्पोक अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स. नाउ कम्युनिकेशन स्किल्स ना, practically any career option you choose, हर career option में if you want to lead, you need to have excellent communication skills, right? तो वो बहुत अच्छा है. एंड ट्रस्ट मी, इसको आप और शार्पन करो. जितना मौका मिलता है, जब मौका मिलता है, स्कूल में, आपके नेबरहुड में, कम्युनिटी में, कहीं पर भी अपॉर्चुनिटी मिलती है बात करने की किसी भी ओकेजन पे, ट्राई टू गो आउट एंड स्पीक. जितना रिफाइन करोगे उतना ज्यादा अच्छा है ना. एंड विथ रिस्पेक्ट टू राइटिंग, आई थिंक राइटिंग इज ऑल्सो एन ओरिजिनल आर्ट, कि जहां पर आप आपके थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हो. लिटरेचर, और जितना आप रीडिंग कर सकते हो, जितना आप राइटिंग कर सकते हो, वहां पर आजकल आपने देखा होगा कंटेंट राइटर्स, जितना भी मार्केटिंग और ये सब होता है, ये सब कंटेंट राइटर्स करते हैं, राइट? राइट फ्रॉम राइटिंग अ स्क्रिप्ट ऑफ द मूवी टू द स्क्रिप्ट ऑफ टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट और एनीथिंग. कोई भी चीज जो आपको अच्छी लगती है, टीवी पे कोई अगर एडवर्टाइजमेंट भी अच्छी लगती है, वो किसी ना किसी ने लिखी होती है. तो राइटिंग का ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी है रिसर्च में भी. जैसे कि अक्षय सर ने कहा कि अगर आप एक बहुत अच्छा राइटिंग आपके स्किल्स है, तो रिसर्च तो बहुत सारे स्ट्रीम्स में राइटिंग का इस्तेमाल होगा. तो ये एक्चुअली फाउंडेशन स्किल्स है जो आपको पसंद है ना, स्पीकिंग स्किल्स एंड राइटिंग स्किल्स, फाउंडेशनल स्किल्स. हर सेक्टर में आप इसको यूज करके बहुत अच्छा करियर ऑप्शन डेवलप कर सकते हो, राइट? ओके, एंड मोर ऑन दिस. यस, जैसे प्रेम सर ने कहा आर्किटेक्चर के बारे में, एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा. आर्किटेक्चर के साथ बूमिंग फील्ड है काफी इंटीरियर डिजाइन एज वेल. सो आप इंटीरियर में भी जा सकते हो, वो एक्सप्लोर कर सकते हो. सो दोनों फील्ड्स हैंड इन हैंड जाते हैं एक दूसरे के साथ. एंड और एक चीज, जैसे प्रेम सर ने कहा कि किसी भी चीज के लिए एक स्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है. जैसे हमने ये पॉडकास्ट प्रिपेयर किया, इसके लिए भी टू बी वेरी फ्रैंक हमने थोड़ा प्रिपरेशन किया है. हमने कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर किए, हमने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं और फिर हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं. तो यस, द राइटिंग स्किल्स यहाँ पर भी काम में आ सकती है. सो यस, आई गेस वैष्णवी, दैट आंसर्स योर क्वेश्चन. नेक्स्ट इज रागिनी. यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क द क्वेश्चन. Sir, I have interested in English, and so I've decided to be a English professor. But what happens sometimes, my mom says you go in NEET, and my dad says you should do IIT. So that time we become emotional, and that time we decide to be what mom and dad says. okay. So what should we do? I can understand the confusion there, because IIT is something which has good amount of, like, if I have to be very honest, job security is slightly better in IIT as compared to a career in
इंग्लिश लिटरेचर. ओके, बट हैविंग सेड दैट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इफ यू हैव इंटरेस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर तो यहाँ पे करियर ऑप्शंस नहीं. इतने ज्यादा करियर ऑप्शंस है इंग्लिश लिटरेचर में भी, है ना, बहुत बहुत ज्यादा करियर ऑप्शंस है. मतलब जर्नलिज्म हो गया, टीचिंग सेक्टर में हो गया. टीचिंग सेक्टर मतलब इंडिया की पॉपुलेशन, आपको पता है इंडिया की पॉपुलेशन है, मतलब आपको सबको पता ही होगा 1.36 बिलियन पॉपुलेशन है. कितने परसेंट लोगों को इंग्लिश आती है? एनी आइडिया, एनी गेसेस, कितने परसेंट लोगों को इंग्लिश आती है? Let me make a wild guess, Prem sir. Let's take it for 30 to 40%. Okay, 30 to 40% would be a lot actually, है ना, बहुत ज्यादा हो जाएगा. 30 to 40%, इतना भी नहीं है. Sir, 10%. Yeah, 10% is can be a okay number, right? And so इतनी बड़ी पॉपुलेशन को, और जिस तरह से ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, हर चीज इंटरकनेक्टेड हो रही है, तो इंग्लिश सीखना ही पड़ने वाला है. सब लोगों को इंग्लिश रीडिंग, बोलते अगर नहीं भी आता तो पढ़ते आना चाहिए. बहुत सारी चीजें हैं जो इंग्लिश के बारे में आनी चाहिए. एंड इंडिया में इंग्लिश लिटरेसी रेट तो इंडिया में अभी जितने हैं वो तो बहुत ही मतलब उतना ज्यादा हाई नहीं है, बट लिटरेसी तो बढ़नी चाहिए, बट उसमें भी इंग्लिश लिटरेसी बहुत ज्यादा बढ़नी चाहिए. तो ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटीज इंग्लिश में भी है राइटिंग स्किल्स को लेके उसमें. बट अब यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल होकर सोचना पड़ेगा. हमें ये सोचना पड़ेगा कि आईआईटी की रिक्वायरमेंट्स क्या है. आईआईटी रिक्वायर्स यू टू बी गुड नॉट विद द टेक्निकल साइड बट विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स. तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि कितनी रुचि है आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ने के लिए, है ना. आपको अगर वो पढ़ने में बहुत मजा आ रहा है, आपको अगर आपका ग्रास्पिंग भी उसको लेके बहुत अच्छा है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप आईआईटी चूज करके पैरेलली परस्यू कर सकते हो आपका राइटिंग का. क्योंकि इंग्लिश लिखना या इंग्लिश लिटरेचर ना, ऐसा कोई स्पेशल आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है. आप बहुत सारा मटेरियल, जितना लिटरेचर आप पढ़ोगे, जितना लिटरेचर आप लिखोगे, ऑटोमेटिकली इंग्लिश आपका बिल्ड होता रहता है. तो आप इसको पैरेलल बिल्ड कर सकते हो. ऐसा कुछ नहीं कि आईआईटी को छोड़ के ही करना पड़ेगा. आप 2 साल जेईई की प्रिपरेशन कर सकते हो. आईआईटी में जाने के बाद आप इस स्किल को भी परस्यू कर सकते हो. दिस इज वन ऑप्शन. सेकेंड ऑप्शन इज दैट इफ यू फील कि आईआईटी शायद ओवर द टॉप हो जाएगा, तो मे बी यू कैन ऑप्ट फॉर अ, मतलब जो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री के लेवल्स होंगे उसको देखते हुए आप सीईटी लेवल के जो एग्जाम होती है उसके लिए भी बहुत अच्छे से ट्राई कर सकते हो. तो वो एक ऑप्शन है ना. उसके अलावा आर्ट्स में और भी ऑप्शन है. मे बी अगर इन डिटेल आपको पूछना है तो शायद हम ऑन कॉल या जैसे भी योगेश सर कोऑर्डिनेट करके हमें बता सकते हैं, वैसे हम कर सकते हैं. बट आई थिंक एग्जैक्ट लेवल पे हमें ये जज करना पड़ेगा, क्योंकि ऑपोजिट्स है ना, इंजीनियरिंग और लिटरेचर थोड़ा सा ऑपोजिट है, इसलिए हमें एग्जैक्ट लेवल पे जज करना पड़ेगा कि कहाँ पर आप अभी हो, और उसके हिसाब से हम डिसीजन ले सकते हैं जो कि प्रैक्टिकल भी हो और आपका इंटरेस्ट भी जिसमें बना रहे. Amazing, Prem sir. Thank you for that answer. So let's take a last question. Can we take a last question, Prem sir? Yes, sir. One question you can take. Yes, Yadnesh, you can unmute and ask your question. Yes, sir. My unable to hear you. name is Yadnesh and I am in 7th standard. Sir, मेरा क्वेश्चन ये है कि 7th से कॉम्पिटिटिव और उसका फीडबैक हमें कैसे मिलेगा? यदेश, आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं था हमें. क्या आप फिर से पूछ सकते हैं क्वेश्चन? आपका आवाज ब्रेक हो रहा था बीच में. ओके सर. हाँ, सर मेरा क्वेश्चन यह था कि 7th में कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहते हैं? ओके, 7th में कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं? सबसे पहले तो 7th में एज सच कोई बड़े लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं होता. कौन कौन से होते हैं पहले वो बता देता हूँ और उसके बाद आगे की चीजें. पहला है NSTSC. NSTSC हर क्लास में होता है, तो आप NSTSC दे सकते हो, नंबर 1. दूसरा है साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन. इनके जो अलग अलग एग्जाम्स होते रहते हैं, NSO, IMO, IEO, इंग्लिश ओलंपियाड. अब ये दो जो कॉमन एग्जाम्स हैं ये हर क्लास में होते हैं, NSTSC और SOF फाउंडेशन, जो साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन का NMO, NSO और IEO. तो ये दो एग्जाम्स आप दे सकते हो क्लास 7th में अगर आप हो तो. जब आप क्लास 8th में जाओगे तो गवर्नमेंट एग्जाम शुरू हो जाते हैं. क्लास 8th में गवर्नमेंट एग्जाम शुरू हो जाएंगे, जैसे गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, उसके बाद MTSC है ना. तो ये सारे एग्जाम्स शुरू हो जाएंगे. पर क्लास 7th के लिए ये दो एग्जाम. इसके अलावा एक और एग्जाम है जिसका नाम है विजडम मैथ्स. अब ये एग्जाम्स हर स्कूल के पास इसका फॉर्म नहीं आता, तो आप विजडम मैथ्स इंटरनेट पे चेक कर सकते हो.
अगर उनके पास डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो उनके वेबसाइट से, तो आप विजडम मैथ्स का भी एग्जाम दे सकते हो, प्रोवाइडेड आपके सिटी में उसका सेंटर हो। तभी औरंगाबाद में इसका सेंटर है जहां पर मैं हूँ, बट अगर नगर में, अहमदनगर में उसका सेंटर है तो शायद वहां पर भी आप विजडम मैथ्स दे सकते हो। तो 3 एग्जाम्स आप क्लास 7th में दे सकते हो। फर्स्ट इज NSTSC, सेकेंड इज साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन के NSO, NMO, IEO जैसे एग्जाम्स, और तीसरा है विजडम मैथ्स जो क्लास 7th के लिए होता है। Okay, thank you so much, Prem sir, for this question. Yes, Yadnesh. सर वो उसका फीडबैक हम कैसे मिलेगा? उसका फीडबैक मतलब उसका गाइडेंस आप कह रहे हो? यस सर। तो NSPSC और NSO का मोस्ट ऑफ द स्कूल्स के साथ टाई अप हुआ होता है, तो आप एक बार आपके स्कूल से कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप स्कूल से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो किसी कारण से, तो मैं आपको चैट सेक्शन में इन एग्जाम्स के नाम मैसेज कर देता हूँ, आप प्लीज उनको इंटरनेट पे सर्च कर लेना। ऑलराइट यज्ञेश? I think that should be fine. Yes, Prem sir. Thank you so much. यज्ञेश, अगर आपको कोई सवाल है तो हम पर्सनली बात कर सकते हैं, या आपके सवाल हम नेक्स्ट सेशंस में कवर कर सकते हैं, और बाकी सब जिनका भी सवाल था हम होप सो हम आगे आने वाले सेशंस में हम कवर कर पाएंगे। सो जैसे कि प्रेम सर ने ऑलरेडी लाइट बता दिया है कि हम अगले सेशंस में क्या कवर करेंगे, जैसे कि अलग अलग करियर ऑप्शंस क्या है, करियर रूट, राइट करियर चूज कैसे करें, तो इनके ऊपर हम काफी सारे सेशंस कवर करने वाले हैं। जैसे कि प्रेम सर और मैं भी कोई एक पर्टिकुलर करियर के बारे में एक सेशंस लेने वाला हूं, तो काफी एक्साइटिंग होने वाले हैं आगे के सेशंस, सो मिस मत कीजिएगा। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, एंड थैंक यू योगेश सर, थैंक यू प्रेम सर, थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग स्टूडेंट्स, बिकॉज दिस करियर गाइडेंस इज ऑल नेसेसरी, एज वी कैन सी कि आज का हमारा इंडिया कहाँ जा रहा है, और काफी सारे यूथ मिसगाइडेड हो रहे हैं और काफी मास फॉलो कर रहे हैं कि जो मेरा फ्रेंड कर रहा है मैं भी करूंगा, तो वो ना हो, इसलिए हम ये पॉडकास्ट एवरी संडे ऑर्गेनाइज करने का ट्राई करेंगे, एंड ट्राई नहीं ऑब्वियसली करेंगे हम। एंड यस, दिस रैप्स इट अप, एंड आई हैंड द माइक ओवर टू योगेश सर। थैंक यू सो मच। एंड इसमें एक ही चीज मैं बोलना चाहूंगा बिफोर गाइज, है ना, आपके अगर कोई क्वेश्चंस है जो है ना, बिकॉज ऑफ इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम इफ वी कुड नॉट टेक इट, प्लीज नोट इट डाउन, है ना। अगला सेशन हमारा होने ही वाला है, स्टे ट्यून। तो आप नेक्स्ट संडे आओगे तो तब हम आपके क्वेश्चंस ले सकते हैं। उसके बाद भी आपके पास एक हफ्ता है, इस एक हफ्ते में भी और कोई नए क्वेश्चंस आएंगे तो आप वो भी नोट करके रख सकते हो। आप योगेश सर के पास भेज सकते हो, आप नेक्स्ट सेशन में पूछ सकते हो। और अगर आपके कोई फ्रेंड्स इस तरह के इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे तो आई थिंक योगेश सर के थ्रू आप उनको नेक्स्ट सेशन में भी इनवाइट कर सकते हो, है ना। एंड आई हैड रियली